Good morning, students. Today we start national income. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NDPFC, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈ। NDP ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FC, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਸੋਰੀ NNPFC, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ? ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ, ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ, P ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, FC ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ NNPFC, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ? NDPFC। ਨੈਟ D ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, P ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, FC ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 올 ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਡ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਗਰੋਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਰੋਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨੈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ। ਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਿਕਾਲੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? NNPFC। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੋਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ NNPFC, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NDPFC, ਜਾਣੀ ਕਿ N ਤੇ D ਤੱਕ ਹੈ। N ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ, D ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਰੋਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਰੋਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟ। ਗਰੋਸ ਤੇ ਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ 10,000 ਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ 10,000 ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਸੀਲ ਖੋਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ,
कि हुण ओह 10,000 ਦਾ ही विकूगा, नहीं, उनकी प्राइस घट गई। हुण वो तुहाडे तो 8,000 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ भी की लेगा 8,000 ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ना वैल्यू, कहेगा कि हुण मार्केट खुल गई तो चाहे उनके तो नवा मॉडल हजे भी 10,000 का ही होएगा, पर जिहड़ा मॉडल तुसीं एक बार खोल लिया उनकी वैल्यू मार्केट प्राइस के नालों की हो जाएगी, घट जाएगी। किन्नी घटेगी? सपोज हुण तुहाडा 8,000 का विकिया, 8,000 का विकिया, लॉस किन्ने का होया? 2,000 का। किन्ने का लॉस हो गया? 2,000 का। खरीदिया 10,000 का, बेचिया 8,000 का, किन्ने का लॉस होया? 2,000 का। ये जिहड़ा लॉस होया ना 2,000 का, इनू बोलते ने डेप्रीसीएशन। इनू की बोलते ने? डेप्रीसीएशन। क्लीयर? जड़ा 2,000 का लॉस होया उन्होंने की बोलते ने? डेप्रीसीएशन। जड़ा 10,000 है ये की है? ग्रोस। जड़ा 8,000 है ये की है? नैट। क्लीयर हो गया? 10,000 का खरीदिया वो तुहाडी ग्रोस वैल्यू है, 8,000 दे विच बेचिया वो नैट, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ठीक है, जड़ा हुण ग्रोस है, ग्रोस नूं आपां कह दिंदे हैं परचेजिंग पावर। ग्रोस नूं आपां की बोल सकते हैं? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर किन्ने दी सी आउंदी? परचेजिंग वैल्यू किन्ने दी सी? कि परचेजिंग वैल्यू कह सकते हो, पावर नहीं था वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू किन्नी सी? 10,000 दी। लेकिन उनकी हुण एक्चुअल वैल्यू किन्नी है? एक्चुअल वैल्यू किन्नी है? 8,000। एक्चुअल वैल्यू किन्नी हो गई उनकी? 8,000। 2,000 की हो गया? डेप्रीसीएशन। क्योंकि जे तुहानूं कोई तुहाडा फ्रेंड पूछेगा कि तुहाडा फोन किन्ने दा है, तुसीं कहोगे 10,000 का, वो तो तुहाडी परचेजिंग वैल्यू है ना, लेकिन उनकी एक्चुअल दे विच किन्नी वैल्यू है? हुण एक्चुअल वैल्यू किन्नी है उनकी? 8,000। 2,000 की हो गया उनके विचों? डेप्रीसीएशन। हुण कहण दा मतलब की हो गया? ये जिहड़ा 2,000 है ये 10,000 दे विचों जेकर आपां 2,000 माइनस कर दिंदे आ, नैट वैल्यू कढनी होवे तो 10,000 दे विच 2,000 का माइनस कर दांगे तो 8,000 की आ गया? नैट आ गया। जाने कि ग्रोस दे विचों जेकर आपां डेप्रीसीएशन नूं माइनस कर दईए तो की आ जाऊगा? नैट। ग्रोस दे विचों डेप्रीसीएशन नूं माइनस करता तो की आ गया? नैट। तुहाडा पहला फार्मूला बन गया। पहला फार्मूला की बन गया? ग्रोस दे विचों डेप्रीसीएशन नूं माइनस करता तो बन जाएगा नैट। आ देखो 10,000 दे विचों जेकर तुसीं 2,000 माइनस कर दोगे तो 8,000 आ गया। 8,000 की है तुहाडी नैट वैल्यू। हुण जेकर आपां नैट वैल्यू 8,000 दे विचों डेप्रीसीएशन नूं प्लस कर दईए, 2,000 प्लस कर दईए तो की आ जाऊगा? 10,000। 10,000 की है तुहाडी ग्रोस वैल्यू। दूसरा फार्मूला, जेकर असीं नैट वैल्यू दे विच डेप्रीसीएशन नूं प्लस कर दांगे फिर साडे कोल की आ जाऊगा? ग्रोस। जाने कि ग्रोस दे विचों जेकर डेप्रीसीएशन नूं माइनस कर दो तो नैट आ जाएगा, तो उही जे नैट दे विच डेप्रीसीएशन नूं प्लस कर दो तो की आ जाऊगा? ग्रोस। दूसरा फार्मूला। ठीक है, हुण क्यों समझाया गया? तुहानूं कई बार ग्रोस गिवन हुंदी है, तुहानूं कहंदे नैट निकालो तो तुहानूं स्टेटमेंट दे विच डेप्रीसीएशन गिवन होएगा, तुसीं ग्रोस दे विचों डेप्रीसीएशन नूं माइनस कर देना, तुहाडे कोल नैट वैल्यू आ जाएगी। जां तुहानूं कई बार कहंदे ने ग्रोस वैल्यू निकालो, डेप्रीसीएशन गिवन होएगा, नैट दे विच तुसीं जिहड़ा डेप्रीसीएशन है प्लस कर दोगे, तुहाडे कोल ग्रोस आ जाएगा। सिंपल। देखिए सौखा ही है, बहुत ईजी है। फॉर्मूले आने चाहिए ने, बच्चों वाला काम है प्लस माइनस करना। सिंपल। हुण जिवें देखो तुहानूं गिवन है NDPFC, तुहानूं ये तो गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट तुसीं करनी है GDPFC, ठीक है, ये तुसीं कैलकुलेट करनी है। बाकी सारा कुछ सेम है। ये तुहानूं पहले ही दसदा, इनका मतलब नैट हुंदा जिहड़ा स्टार्टिंग हुंदा, ये तुहानूं की हुंदा है? ग्रोस। तुहानूं नैट गिवन है तो तुसीं ग्रोस निकालनी है। तुहानूं हुणे मैं फॉर्मूला दसदा कि नैट तो जेकर ग्रोस निकालना है तो डेप्रीसीएशन की कर दो प्लस, वो तुहानूं स्टेटमेंट दे विच गिवन होएगी कि इन्नी डेप्रीसीएशन है। तुसीं डेप्रीसीएशन इस स्टेटमेंट सपोज NDPFC तुहानूं गिवन है 10,000, डेप्रीसीएशन तुहानूं गिवन है 200 तो तुहानूं ये डेप्रीसीएशन गिवन है, ये तुहाडी NDPFC गिवन है, तो तुहानूं कहता कि GDPFC निकालो। तुहानूं पता है कि GDPFC किवें निकालांगे? NDPFC दे विच असीं प्लस कर दांगे डेप्रीसीएशन। NDPFC किन्ना वै? 10,000। डेप्रीसीएशन किन्ना वै? 200। 10,200 तुहाडा आंसर आ गया। बस दोनों प्लस कर देना। बस इत्थे खेड की है, कोई भी चीज़ वध जां घट नहीं प्लस माइनस करनी। जे तुसीं एक चीज़ वध प्लस करती जां एक चीज़ वध माइनस करती तो उत्थे स्टेटमेंट गलत हो जाना है। तुसीं कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस करते जाना है। वो मैं तुहानूं दसूँगी किहड़ी चीज़ प्लस करनी है किहड़ी माइनस करनी है, वो तुसीं सही माइनस प्लस करना है। बस 6 नंबर तुहाडे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये डेड श्योर आएगा ही आएगा। समझ गए हुण सारे जने किवें करना वै? कि जेकर तुहानूं क्या गया वै कि निकालो
ग्रोस जे तुहानूं क्या ग्रोस निकाल लो तो नैट ते डेप्रीसीएशन दा गिवन होणगे ये तीन चीज़ां ही ने ग्रोस नैट ते डेप्रीसीएशन तीन चीज़ां ने तिन्नां दे विचों दो तो गिवन होणगे एक निकालनी है यानी कि ठीक है जे तो ग्रोस गिवन है तो नैट ते डेप्रीसीएशन नूं प्लस कर दो जेकर नैट गिवन है तो डेप्रीसीएशन नूं ग्रोस दे विचों की कर दो माइनस कर दो बस इड्डी क खेल है ये याद रखना है बस तुसीं ये नहीं कन्फ्यूज होना ग्रोस माइनस डेप्रीसीएशन नैट ग्रोस सॉरी नैट प्लस डेप्रीसीएशन की आ जाऊगा ग्रोस नैचुरली गल है नैट डेप्रीसीएशन उधर ले जाओ उधर जाके की हो जाऊगा प्लस हो जाऊगा इधर की रह गया ग्रोस रह गया याद हो गए दो फार्मूले चलो अच्छी गल है जे समझ आ गई नहीं समझ आई तो भी आ जाओ एक होर कर लेने बाकी फिर करांगे एक आ गया तुहाडा मार्केट प्राइस ते फैक्टर कोस्ट मार्केट प्राइस हुंदी है ਜਿਹੜੀ जिस चीज़ से जिस कीमत से कोई भी चीज़ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ देखो मार्केट प्राइस की गल कर रहे हैं आ पेन है सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 रुपीज़ का पेन है ठीक है ये पेन मान लेने वैसे तो कलर है 10 पेन है 10 रुपीज़ का है इनकी ये तो इनकी मार्केट प्राइस है पर इनकी विच टैक्स भी ऐड है कोई भी चीज़ मार्केट जाती है चाहे कोई टॉफ़ी है चॉकलेट है पेन है कॉपी है पेंसिल है बुक है ब्लैक बोर्ड है चेयर है टेबल है एनीथिंग एल्स जो तुसीं लैके आने हो तो उनके विच टैक्स ऑलरेडी ऐड होंदा है ठीक है जो कोई चीज़ मार्केट दे विच विकन आ जाती है तो उनके विच टैक्स ऐड होंगे यानी कि जो मार्केट प्राइस दे विच टैक्स की होंगे ने ऐड होंगे ने मार्केट प्राइस का मतलब ये हो गया नाम भी ईजी याद करना मार्केट प्राइस मतलब टैक्स ऐड है क्योंकि कोई भी चीज़ जो मार्केट दे विच आ जाती है तो वो टैक्स इंकलूड होकर ही आते उनके विच फैक्टर कोस्ट मतलब जिहड़ी चीज़ किस कोस्ट से बनी है फैक्टर कोस्ट मतलब कोई चीज़ बनाई गई है उनकी एक्चुअल दे विच कितनी कोस्ट आई है सपोज आपां कोई चेयर बनाई है चेयर ते आपां बिजली का खर्चा लगा के मशीनरी लेबर लगा के जां आपां जिन्ना उन्हें पैसा इन्वैसट किया है वो सारा लगा के सपोज तुहाडी चेयर बनी है 80 रुपीज़ की 80 रुपीज़ की बनी है कि हुण तुसीं उहनूं 80 रुपीज़ का ही बेच दोगे नहीं जो मार्केट दे विच विकण दे लिए आऊगी इहदे सारा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऐड है 80 रुपीज़ की तुहानूं पई है तुसीं हुण जो मार्केट दे विच विकण लिए आऊगी कि वो 80 रुपये की विकेगी नहीं उहदे ते हुण टैक्स इंकलूड होणगे जो मार्केट दे विच आ जाएगी तो किन्ने दी हो जाएगी 100 रुपये की सपोज उहदे ते 20 रुपये टैक्स लग गई मार्केट के टैक्स वगैरह लग के आंदा ना सारा कुछ लग के आ गया तो मार्केट की हो गया 100 रुपया हुण जिहड़ा 20 रुपये का गैप है इनू बोलते हैं ये 20 रुपये ने जड़े ये की है टैक्स नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस है ये जड़े 20 रुपये ने वो की ने नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस जड़े की तुहाडे नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस क्योंकि ये टैक्स कड़े ने डायरैक्ट टैक्सिस ना टैक्स दो तरह के होंगे ने एक होंगे ने डायरैक्ट टैक्सिस एक कड़े होंगे ने इनडायरैक्ट टैक्सिस ये तुहानूं सबनूं पता ही है तो आपां कीता होया है डायरैक्ट टैक्सिस जो अपनी इनकम से लगता है प्रॉपर्टी से लगता है वो होंगे जिन्होंने आप डायरैक्ट खुद पे करते हैं इनडायरैक्ट टैक्सिस जिन्होंने आप सेल टैक्स हो गए जिन्होंने आप दूसरे परसन से टाल देंगे हैं ठीक है जोड़े हर किसी लिए पे करने कंपलसरी कोई जरा इहदे तो टाल नहीं सकता क्योंकि आप जो कॉपी पेन लैके आने इहदे टैक्स ऑलरेडी इंकलूड ने तो आपनूं दे के आने पैंदे ने ठीक है वो होंगे ने इनडायरैक्ट टैक्सिस ठीक है तो इन्हूं बोलते हैं नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस है ठीक है 80 रुपये दे विच फैक्टर कोस्ट दे विच की है जो 20 रुपये विकन आ गए आ जो 20 रुपये का गैप है ये की हो गया तो इनडायरैक्ट टैक्सिस नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस हुण जो आपां 80 दे विच 20 जोड़ती तो की आ गया MP आऊगा ना 80 प्लस 20 तो 100 माइनस 20 80 आ गया हुण देखो इत्थों साफ फार्मूला बन गया यानी कि फैक्टर कोस्ट दे विच जेकर असी प्लस कर देंगे नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस 80 प्लस 20 की आ जाऊगा मार्केट प्राइस हुण इस तरह ही जेकर मार्केट प्राइस के 100 के 20 माइनस कर देंगे फिर की आ जाऊगा 80 आ जाऊगा 100 की है मार्केट प्राइस विचों माइनस कर देंगे आपां नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस ताकि आ गया अपने को फैक्टर कोस्ट ये तुहाडा तीसरा फार्मूला हो गया ये तुहाडा चौथा फार्मूला हो गया क्लीयर यानी कि जो असी फैक्टर कोस्ट के नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस जोड़ देंगे जो जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी है उनके टैक्स में ऐड करता तो मार्केट प्राइस बन जूगी जे असी मार्केट प्राइस के नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस में माइनस ही कर देंगे फिर की आ जूगी फैक्टर कोस्ट ठीक है हुण कई बार की होंदा वै कि नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस गिवन नहीं होंदे तां गिवन की होगा फिर इनडायरैक्ट टैक्सिस गिवन होंदे ने ते सबसिडीज़ गिवन होंदियां ने नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस गिवन होंदा है तो सबसिडीज़ गिवन होंदा है जे तुसी इनडायरैक्ट टैक्सिस दे विचों माइनस कर दोगे सबसिडीज़ तो तुहाडे कोल आ जाऊगा नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस याद रखना है इनडायरैक्ट टैक्सिस दे विचों सबसिडीज़ माइनस करना है बच्चे की करते हैं सबसिडीज़ दे विचों इनडायरैक्ट टैक्सिस माइनस कर देंगे ने सारा सम गलत
ਜਾਂ ब्रैकटिस लगाना भूल जाते हैं, जे ब्रैकट नहीं लगावांगे तो भी सारी गड़बड़ हो जानी है। क्यों की करते हैं, सपोज अगे कोई चीज़ माइनस करने वाली है, अगे आ गया इनडायरैक्ट टैक्सिस माइनस सबसिडी, ऐ कर जाते हैं तो भी गलत हो गया ना, क्योंकि इनडायरैक्ट टैक्सिस तो अगे तो माइनस हो जाऊगा, लेकिन ये माइनस माइनस फिर की हो जाते हैं प्लस। ये चलो ये चीज़ तुहानूं हजे नहीं दसदी मैं, जो कोई सम आऊगा उदों समझाऊँगी, फिर कन्फ्यूज हो जाऊँगी। चलो नैट इन्ना ही समझ लो जे इनडायरैक्ट टैक्सिस माइनस सबसिडीज ब्रैकट दे विच ही रखना है, क्योंकि ब्रैकट के बाद जो कोई सिंबल होंदा वै तो उस सिंबल नाल अंदरले रेशो चेंज हो जानी है, ये माइनस का हो जाऊगा, प्लस का हो जाऊगा, इसलिए उन्होंने ब्रैकट के विच रख के सोल्व करना है। इनडायरैक्ट टैक्सिस माइनस सबसिडीज, ये तुहाडा पंजवां फार्मूला हो गया। समझ आ गई। जे फैक्टर कोस्ट गिवन है, मार्केट प्राइस निकालनी है तो नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस प्लस कर दो, मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कोस्ट कढ़नी है तो नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस की कर दो, माइनस कर दो। डरना नहीं, घबराना नहीं, इहदे नाल दे सम बहुत करवाऊँगी मैं, तुहानूं इत्थे ही करवाऊँगी, वीडियो दे विच मैं खुद ही सोल्व कर दूँगी, तो तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा सारा कुछ। अज सिर्फ आपां इन्ना ही करांगे, समझ गए। फैक्टर कोस्ट दे विच नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस प्लस करने है तो मार्केट प्राइस बन जाएगी, मार्केट प्राइस दे विच तुसीं माइनस कर दोगे नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस, की आ जाऊगी फैक्टर कोस्ट। नैट इनडायरैक्ट टैक्स इधर लै जाओ, इधर आके माइनस दे हो जाएंगे, बच की गया फैक्टर कोस्ट। ये याद रखना है बस, ये तुसीं याद कर लो चंगी तरह, कोई गलती होएगी नहीं। हुण जिवें नैशनल इनकम NNP तुहानूं MP गिवन है, सपोज आ चीज़ गिवन है, तुहानूं क्या ये गिवन है, तुहानूं क्या गया वै NNP FC निकाल लो, तुहानूं पता है कि मार्केट प्राइस दी हुई है, फैक्टर कोस्ट निकालनी है, तो की चीज़ माइनस करोगे, नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस ऑलरेडी गिवन होणगे, बस तुहानूं आ भी गिवन होएगी चीज़, तो नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस भी गिवन होणगे, तुसीं माइनस करना है। ये तुहानूं पता होना चाहिए कि चीज़ माइनस करनी है कि प्लस करनी है। सपोज NNP MP तुहानूं गिवन है 10,000, नाल तुहानूं नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस गिवन है 1000 रुपया, ठीक है, तो तुहानूं कहा गया कि नैट नैशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट कड्डो, फार्मूला तुहानूं पता ही है कि MP दे विचों FC माइनस करना है। बस तुसीं आ चीज़ां देखनियां नहीं, आ दोवें चीज़ां सेम ने, आ भी सेम है, ये भी सेम है, रह की गई चली आही चीज़ सेम नहीं, क्योंकि MP तो FC जाना है, MP तो FC जाना है तो की करना पऊगा, नैट इनडायरैक्ट टैक्सिस की करने पैणगे माइनस, बस इहदे विचों माइनस कर दो, 9,000 रह गया। क्लीयर। जे इहदे तो तुहानूं आ चीज़ गिवन है, इहदे तो इत्थे जाना है, तो फैक्टर तो मार्केट जाना है, तो आ चीज़ां गिवन ने, प्लस कर दो बस। क्लीयर। जे कोई डाउट होया तो पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना है, तो समझने की कोशिश करनी है, ईजी है, ठीक है। हजे आप इहदे ते लगावांगे बेसिक, तो कल फिर कराऊँगी हजे दोबारा, इहदे नाल दे सम करवाऊँगी 2-4, तुहानूं क्लीयर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।